हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 11 हिस्ट्री एनसीईआरटी सीबीएसई नोमैथिकल एम्पायर, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। कक्षा 11वीं इतिहास का जो है अध्ययन अवार साम्राज्य, और ये एनसीईआरटी पे आधारित है, जो कि 11वीं कक्षा के बच्चों के लिए है। इसमें हम कुछ क्वेश्चन पे एनालाइज करेंगे, समझेंगे, जो एग्ज़ाम व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। हमारा यहाँ क्वेश्चन जो हम करेंगे वो हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में रहेगा, तो ये और भी आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो हर एक क्वेश्चन को समझिए, देखिए और विचार कीजिए। लेकिन आपको पता है कि टॉपिक करने से पहले, क्वेश्चन करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Today we discussion most important chapter here, the three order. You know that there's an important chapter here, three orders. The next questions arrive here, discuss the political changes which occurred during to the 5th and 6th century in Europe. You know that there's an important question here, discuss the political changes which occurred during to the 5th and 6th century in Europe. The political changes that occurred during the 5th and 6th century were flowing way here. First of all here, European king strengthened their militaries as well as a finance power during the 5th and 6th centuries. They create a powerful new state. They create a powerful new states, and this were much significant for Europe. They create powerful new states, and these were much significant for the Europe. Economical changes were also occurring. Historians has therefore is called this king the new monarch. This is important. The new monarch here. That's important. And second point here, Louis 11 is a France, Maximilian is Austrias. You know that here Louis 11 is a France, Maximilian is Austrias, and Henry built the 7 in England, and the Isabel they are Ferdinand and Spain were absolutist a ruler. Then stated there is a process of organizing standings, armies, and permanent bureaucracy, and the national taxation here. In Spain and Portugal, there is a began to be play a role in the European expansion overseas here. Portugal is important. You know that in Spain and Portugal there is began to play a role in the European expansion overseas here. And the ruler disbanded with their system of federal levers for there is armies and introduced professionally is a trained infantry is equipped with the guns and says Alatrace is directly under their control. That's important here. The next year, the social change start to take place in the 12th and 13th century after the term of the monarchies. That's important. The 12th and 13th century after term of the monarchies, there are dissolution of the feudal system and lordship, and was gas and the slow rate of economics growth had given to the first opportunity to kings to increase their control over their powerful and not so powerful subject here. And with increasing in the taxes, that treasure of monarchies filled here, and they had enough revenues to be support larger armies. They also defended
and expanded their fortress as the ruthless is destroyed their internal back wings without assistance from the autocracy. Centralization could not be done. In England, the rebellions occurred in 1497, 1536, and 1547, and 1549 and 1553. Estimates that's important here. In France, Louis XI is a 1461 to 83, a very too long struggle against the duchess and their princes. In the 16th century, the religious war in France were a contrast between the royal preeminence and regional liberties here. The king was now to be center of liberate a quarters, a society, and the network of patrons, slant and relationship here. All the monarchies is whether big and powerful, needed to the cooperations of those who could be command authority. It did not be matter whether they were big and strong, but it became the means of ensuring cooperation, and it could also be obtained by the means of money. All monarchies, whether big and powerful, needed to the cooperation, but for the ensuring survival, the nobility managed to drastical shift here. They quickly transformed himself into the locality, and the lower absolutism has been to the call modified from the feudalism. The lords were given to the permanent position in the administrative service here, and now they started to dominating the political scenes. That's important. All monarchy whether big and powerful, that's important, but ensuring survive the nobility and manage trust shift here, that's important here. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है चैप्टर 3 वर्ड क्लास 11 हिस्ट्री एनसीईआरटी एंड सीबीएसई अकॉर्डिंग ईयर। अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। यूरोप में 15वीं और 16वीं शताब्दी के दौरान हुए राजनीतिक परिवर्तन की चर्चा करना है। यूरोप में 15वीं और 16वीं शताब्दी के दौरान हुए राजनीतिक परिवर्तन किस प्रकार का था? कौन समय काल में 15वीं और 16वीं शताब्दी के दौरान राजनीतिक परिवर्तन देखा जाए तो 15वीं और 16वीं शताब्दी के दौरान हुए राजनीतिक परिवर्तन काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। कहते हैं 15वीं और 16वीं शताब्दी के दौरान यूरोपीय राजाओं ने अपनी सैन्य और वित्तीय शक्ति की मजबूती किया, क्योंकि ये समय काल काफ़ी महत्वपूर्ण था। 15वीं और 16वीं शताब्दी जहाँ पर यूरोपीय राजाओं ने अपनी सैन्य शक्तियों और वित्तीय शक्तियों को मजबूत किया। उन्होंने शक्तिशाली नए राज्य भी बनाए और ये यूरोप के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। कहते हैं आर्थिक परिवर्तन भी हो रहे थे, इसलिए इतिहासकारों ने इन राजाओं को नए राज्य कहा, क्योंकि देखा जाए तो ये समय काल ऐसा था जहाँ पर काफ़ी परिवर्तन हो रहे थे, और ये परिवर्तन काल में जो है राजाओं को सैन्य वित्तीय शक्तियों को मजबूत करना ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात रहता है। फ्रांस में हुई लुइस 11वां, ऑस्ट्रिया में मैक्सिमिलियन, इंग्लैंड में हेनरी जो कि 7वां और स्पेन में इसाबेल और फेडिंग शासक थे। देखा जाए तो फ्रांस में लुइस 11वें थे और ऑस्ट्रिया में मैक्सिमिलियन और इंग्लैंड में हेनरी जो है 7वां और स्पेन में इसाबेल और फेडिंग शासक थे। उन्होंने स्थायी सेनाएं, अस्थायी नौकरशाही और राष्ट्रीय कराधान के आयोजन भी प्रक्रिया शुरू किया, और देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण कदम था। कहते हैं स्पेन और पुर्तगाल में उन्होंने विदेश में यूरोपीय विस्तार में भूमिका निभाई जो शुरू कर दी। यानी देखा जाए तो उन्होंने स्पेन और पुर्तगाल में विदेशियों में अपनी भूमिका सुनिश्चित किया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो शासकों ने अपनी सेनाओं के लिए समांतर शुल्क की व्यवस्था खत्म कर दिया और बंदूकों और घेराबंदी तोपखानों से लैस पेशेवर रूप से जो है प्रशिक्षित पैदल सेना के सीधे अपने नियंत्रण में ले लिया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी कि शासकों ने अपनी सेना के लिए समान शुल्क की व्यवस्था की और सारे कुछ, चाहे बंदूक हो या घेराबंदी हो या तोपखाना हो या पैदल सेना हो, सब अपने नियंत्रण में ले लिया। इससे ये हुआ कि राजा जो थे उस समय शक्तिशाली हो गए। 12वीं और 13वीं शताब्दी में राजतंत्रों की विजय के बाद सामाजिक परिवर्तन होने शुरू हुए, और कहते हैं धत्व जागीरदारी की समानती व्यवस्था के विघटन और आर्थिक विकास की धीमी दर ने राजाओं को अपने शक्तिशाली और
कम शक्तिशाली विषय पर अपना नियंत्रण बढ़ाने का पहला अवसर दे दिया। यानी यहाँ पर 13वीं और जो है 12वीं शताब्दी में ये बात तो साफ हो गई कि राजा अपनी जो है कमजोरियों को यहाँ उजागर नहीं होना देना चाहते थे और वो अपने सभी चीज़ों पर जो है नियंत्रण रखना को गवा नहीं सकते थे। इसलिए ये 13वीं और 12वीं शताब्दी इनके विजय के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था, क्योंकि इन्होंने अपनी गलतियों भी सुधारी और अपने आप को भी व्यवस्थित किया। देखा जाए तो करों में वृद्धि ने राजाओं का खजाना भर गया। करों में जिन्होंने वृद्धि किया, जो लोगों के कर को बढ़ा दिया, इससे इनकी खजाना जो है पूरी तरह से भर गया और बड़ी सेनाओं का समर्थन करने के लिए उनके पास पर्याप्त राजस्व भी था। अब इतने बड़े सेना को जो कंट्रोल करने के लिए उनके पास पर्याप्त मात्रा में राजस्व था, जिससे वो सेनाओं का जो है पूरी तरह समर्थन अपने हाथों में ले सकते थे। उन्होंने अपनी सीमाओं की रक्षा और विस्तार भी किया और आंतरिक कहल को बेरहमी से नष्ट भी कर दिया। कहते अभिजात वर्ग के प्रतिरोध के बिना केंद्रीकृत नहीं किया जा सकता था। इंग्लैंड में विद्रोह जो है 1497, 1536, 1547, 1549 और 1553 में एक साथ हुए। अब देखा जाए तो इंग्लैंड में विद्रोह जो कि ये सभी समय काल में हुए, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। कहते किसी भी देश को कमज़ोर करता है तो वो विद्रोह ही करता है, और विद्रोह होने के कारण इंग्लैंड में जो है दिन प्रतिदिन इनकी पावर घटता ही चला जा रहा था। देखा जाए तो फ्रांस में जो यहाँ पर लुईस 11 जो कि 1461 से 83 में डाकू और राजकुमारों के खिलाफ लंबा संघर्ष किया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण था कि फ्रांस में लुईस 11 ने जो है काफ़ी लंबा संघर्ष किया और 16वीं शताब्दी में फ्रांस में धार्मिक युद्ध, शाही विशेष अधिकारों और क्षेत्रीय स्वतंत्रता के बीच एक विरोधाभास थे। यानी देखा जाए तो इसमें काफ़ी विरोधाभास देखने को मिला, और ख़ास तौर पर फ्रांस में लुईस जो है 11वें के अंतर्गत यहाँ पर काफ़ी धर्म युद्ध भी हुए फ्रांस में। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और देखिया जाए तो क्षेत्रीय स्वतंत्रता के बीच एक विरोधाभास भी था। राजा अब एक विस्तृत जो है दरबारी समाज और रक्षक संरक्षक नेटवर्क का केंद्र था। राजा अब सब कुछ राजा ही था। यानी राजा तो जो था एक दरबारी समाज भी था, एक संरक्षक ग्राहक भी था और संबंधों का नेटवर्क केंद्र भी था। कहते हैं सभी राजतंत्रों को, चाहे वो कमज़ोर हो चाहे शक्तिशाली हो, उन लोगों के सहयोग की आवश्यकता थी जो सत्ता पर नियंत्रण रख सकते थे। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो कमज़ोर थे या मजबूत थे। संरक्षण सहयोग और सुनिश्चित करने का साधन बन गया था। इसे धन के माध्यम से भी प्राप्त किया जा सकता था। यानी देखा जाए तो सारी शक्ति जो थी राजाओं के जो है इर्द गिर्द ही घूमती थी, और राजा इस समय काफ़ी मजबूत पड़ गया था, क्योंकि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा कि वो कमज़ोर थे या मजबूत थे। उनका जो है सबसे महत्वपूर्ण था कि धन के माध्यम से वो प्राप्त कर सकते थे। देखा जाए तो अस्तित्व सुनिश्चित करने के लिए कुलीन वर्ग ने एक सामरिक बदलाव का प्रबंधन भी किया। यानी यहाँ पर यह बात काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है कि अस्तित्व सुनिश्चित करने के लिए कुलीन वर्ग ने एक सामरिक बदलाव का प्रबंधन किया। उन्होंने जल्द ही खुद को जो है वफादारों में बदल लिया। वफादार निरपेक्षता को समानतावाद का संशोधित रूप कहा जाता है, और समानता को जो है प्रशासनिक सेवा में अस्थायी स्थान भी दिया गया। अब वो राजनीतिक परिदृश्य पर हावी होने लग गए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अस्तित्व सुनिश्चित करने के लिए कुलीन वर्ग ने एक सामरिक बदलाव का प्रबंधन किया। उन्होंने जल्द ही खुद को वफादारों में बदल लिया। वफादार निरपेक्षता को समानतावाद का संशोधित रूप कहा जाता है, और ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण था कि प्रशासनिक सेवा में स्थायी स्थान भी उनको दिया गया और ये राजनीतिक परिदृश्य पर हावी भी होने लग गए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी, काफ़ी ज़रूरी थी। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है, जो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे का क्वेश्चन भी और भी महत्वपूर्ण रहेगा, तो बने रहे त्रिपाण संतुलन के साथ, और देखना मत भूलिएगा आगे का क्वेश्चन, क्योंकि वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। ये क्वेश्चन समझ में आया, अच्छा लगा, अगर आप दिल से त्रिपाण संतुलन में मदद करने की विश्वास रखते हो, जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि त्रिपाण संतुलन यही बात करता है कि शेयर है तभी केयर है, क्योंकि हमें दूसरे बच्चे तक भी पहुँचना है, और दूसरे बच्चे तक पहुँचने में आप त्रिपाण संतुलन में मदद कर सकते हो, क्योंकि एक आप माध्यम हो। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपके दोस्तों को भी समझ में आएगा, इसलिए शेयर करने की भावना आपके मन से जाना नहीं चाहिए। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो जनरल सी बात दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी जो है आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको तो पता ही होगा कि यहाँ 8 से लेकर MA तक के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण यहाँ प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर सभी वीडियो आपके लिए उपलब्ध है। सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, अभी त्रिपाण संतुलन सब्सक्राइब कर अपने मोबाइल में सेव कीजिए।